السلام علیکم، آداب، میں ہوں عبد القادر اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN نیوز۔ آئیے خبرنامے کی شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائن سے۔ باوجود بھی مودی سرکار نے لوک سبھا میں پیش کر دیا وقف ترمیمی بل، اپوزیشن کا شدید ہنگامہ، بل پر بحث کے لیے 8 گھنٹوں کا وقت متعین۔ BC ایسوسی ایشن کا دہلی جنتر منتر پر بڑا احتجاجی مظاہرہ، CM ریونت ریڈی و اسد الدین اویسی کی بھی شرکت۔ ریزرویشن کو بڑھانے بل کی حمایت کا مرکز پر زور۔ حیدرآباد یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کا احتجاج اور پولیس کا لاٹھی چارج۔ یوٹیوبر دھرو راٹھی کی تلنگانہ حکومت پر تنقید، راہل گاندھی سے کی مداخلت کی اپیل۔ یونیورسٹی آف حیدرآباد طلباء کے خلاف مقدمات واپس لینے پر حکومت کا غور۔ ڈپٹی CM کا بیان، کہا دھوکے بازوں سے بچانے اراضی حاصل کرنا مقصد۔ ماہ مارچ میں تلنگانہ بھر میں ڈرگس کنٹرول حکام کے دھاوے، 3 لاکھ روپے سے زائد کی غیر قانونی ادویات کو کیا گیا ضبط۔ یہ تھی ہیڈ لائن، سے بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ مسلم پرسنل لا بورڈ اور دیگر کئی ایک تنظیموں کی جانب سے سخت مخالفت کے درمیان بھی لوک سبھا میں مودی سرکار نے وقف ترمیمی بل 2025 پیش کر دیا ہے۔ بل کی پیشی کے ساتھ ہی اپوزیشن نے سخت اعتراض کیا اور خوب ہنگامہ بھی کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں تفصیلی رپورٹ۔ مودی سرکار نے لوک سبھا میں مخالفت کے درمیان مسلمانوں کی مذہبی جائیدادوں کے انتظام کے لیے وقف ترمیمی بل 2025 متعارف کرایا۔ وقف ترمیمی بل 2024 لوک سبھا میں پیش کیا گیا۔ اس پر بحث کی شروعات ہو گئی ہے۔ مرکزی وزیر برائے پارلیمانی امور کرن رجیجو نے لوک سبھا میں وقف ترمیمی بل پیش کیا۔ اس دوران بل پیش ہونے سے پہلے ایوان میں اپوزیشن نے اعتراض کیا۔ اس دوران کافی ہنگامہ آرائی بھی دیکھنے کو ملی۔ وہیں لوک سبھا میں بل پیش ہونے سے پہلے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے کہا کہ وقف کا انتظام اب حکومت کے ہاتھ میں ہے۔ بورڈ نے حکومت کو چیلنج دیتے ہوئے کہا کہ بل پاس ہوا تو ملک کی سطح پر احتجاج کیا جائے گا۔ وہیں لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے پوائنٹ آف آرڈر کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمانی کمیٹی کسی بھی بل میں مکمل ترمیم کر سکتی ہے۔ وہیں بل پیش کرنے کے بعد مرکزی وزیر برائے پارلیمانی امور کرن رجیجو نے کہا کہ اگر آج بل نہیں لاتے تو پارلیمنٹ کی عمارت بھی وقف کی جائیداد ہو جاتی۔ پارلیمنٹ بلڈنگ پر بھی وقف بورڈ نے دعویٰ کیا ہے۔ UPA حکومت نے دہلی میں 123 جائیدادوں کو اوقاف کو دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کھلے ذہن کے ساتھ بل پیش کیا ہے۔ وقف بل میں پہلے بھی ترمیم کی کوشش کی گئی تھی۔ اس سے پہلے کبھی بھی اس بل کو غیر آئینی نہیں کہا گیا۔ اس بل پر 25 ریاستوں نے تجاویز دی ہے۔ اب وقف کے کسی بھی فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ احتجاج کرنے والوں کا دل بدل جائے گا۔ مرکزی وزیر نے مزید کہا کہ یہ بل کسی بھی مسجد، درگاہ یا دیگر کسی مذہبی جگہ کو ہڑپنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ خاصتاً عطیہ کی گئی جائیداد کے بہتر انتظام کے لیے ہے تاکہ مسلم سماج کے غریبوں اور خواتین کی تقدیر بدل جائے۔ ایوان میں وقف سوالات کے بعد ضروری دستاویزات میز پر رکھنے کے بعد اسپیکر اوم برلا نے اقلیتی امور کے وزیر کرن رجیجو کا نام طلب کیا کہ وہ وقف ترمیمی بل اور مسلم وقف منسوخی بل 2024 کو ایوان میں غور اور منظوری کے لیے پیش کرے۔ وقف بل کی اپوزیشن نے سخت مذمت کی ہے۔ سماج وادی پارٹی کے سربراہ و MP اکھلیش یادو نے وقف بل پر بحث کے دوران 2 ٹوک انداز میں کہا کہ وقف املاک پر مودی سرکار کی نظر ہے۔ حکومت کی نظریں وقف کی زمین پر ہے، لیکن وقف کی زمین سے بڑا مسئلہ ملک کی زمین کا ہے جس پر چین نے اپنے گاؤں بسا لیے ہیں۔ نیترتو میں غریب مسلمانوں کے لیے کام کر رہا ہے تو اس میں آپتی کیوں ہونا چاہیے آپ کو بتائیے۔ اس لیے سر اس کو
धर्म जाति से बाहर उतर करके सबको सीधा सीधा अपना दिल से पूछ करके आप सोच के देखिए कि आप जो लोग आज इस बिल को विरोध कर रहा है, आज 1 साल 2 साल नहीं, सदियों तक हमारा देश उसको याद रखेगा कौन इस बिल को समर्थन कर रहा है, कौन इस बिल को विरोध कर रहा है। आज चंद वोट के लिए, सत्ता के लिए हमारे मुसलमानों को आपने 70 साल से ज्यादा वोट बैंक बना करके गुमराह किया है। कितना और गुमराह करना चाहते हैं? अब हमारा देश में वोट बैंक का राजनीति नहीं चलेगा। आप लोग आज बिल को समर्थन करने के बाद मेरे ऑफिस में आइए, 1 साल के अंदर में इसका ट्रांसफॉर्मेशनल इम्पैक्ट क्या होता है मैं ही आप लोगों को बता दूंगा। सर, वक्फ अमेंडमेंट जो बिल लाए हैं उसमें जेपीसी का कई रिकमेंडेशंस है जिसको हमने समर्थन किया है और एक्सेप्ट किया हमने यहाँ इस बिल में लाया है। इसलिए बोलना कि जेपीसी का आपका कमेटी के बात को माना ही नहीं है, आपका कमेटी के बात नहीं सुना गया है, वो गलत बात है सर। अध्यक्ष महोदय जी, पार्लियामेंट्री कमेटी जब बनता है तो उसका एक अपना सैंक्टिटी होता है और उस कमेटी में खुले बहस हुए हैं, उसमें मैं अंदर जाना नहीं चाहता हूं क्या हुआ है, लेकिन उनके बीच में कई ऐसे मुद्दे हैं जो हम लोग सरकार समझते हैं कि बहुत अच्छा सुझाव आया है, हमने उसको माना है। और कुछ छोटा अमेंडमेंट है जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो अमेंडमेंट भी हम लेकर के आए हैं। इसके बाद जो पूरा ये सारा व्यवस्था देखने के बाद सबके मन में उम्मीद जागेगा। उम्मीद इसलिए जागेगा कि एक नए सवेरा आने वाला है, इसलिए नए एक्ट का नाम भी उम्मीद हो गया है। तो उम्मीद क्यों हुआ है सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, फुल फॉर्म उम्मीद है, इसका रखने का पीछे कारण है सर। ये उम्मीद क्यों है? अब ये यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट पूरा रजिस्ट्रेशन से लेकर के म्यूटेशन, इंक्रोचमेंट का विषय, सर्वे, कलेक्टर का रोल, सारा विषय को मिला करके मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम को ही बदलने के लिए हमने काम शुरू किया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर तेलंगाना की पसमानदा तबकात बीसी एसोसिएशन के जरिए एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा मुनक़िद हुआ। यह एहतजाज पसमानदा तबकात के लिए रिजर्वेशन को 23% से बढ़ाकर 42% करने के लिए हाल ही में तेलंगाना कानून साज असम्बली से मंजूर किए गए बिल पर अमलावरी के मुतालबे की हिमायत में है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, रियासती वुज़रा के साथ साथ इमाम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस एहतजाजी महाधरने में शिरकत की। इस बिल को पार्लिमानी मंजूरी दरकार है क्योंकि बीसीज़ के लिए मुजवज़ा 42% रिजर्वेशन कोटे पर 50% की हद से तजावुज़ कर जाएगा। महाधरने से खिताब करते हुए सीएम रेवंत रेड्डी ने बीसी बिल की खुलकर हिमायत करते हुए मरकज़ की मोदी सरकार को खूब तनकीद का निशाना बनाया। कहा, मोदी या तो बीसी के लिए 42% रिजर्वेशन दे या अपनी कुर्सी छोड़ दे। साथ ही साथ सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा, बंडी संजय कह रहे हैं कि वो बीसी के लिए जान दे देंगे, हमें आपकी ज़िंदगी नहीं चाहिए, बस 42% रिजर्वेशन दे दे। रिजर्वेशन बिल की नामंजूरी पर मुल्क गिर एहतजाज की भी बात कही। वहीं महाधरने से इमाम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी खिताब करते हुए कहा कि मकामी इदारों, तालीम और रोज़गार में पसमानदा तबकात को रिजर्वेशन फराहम किया जाना चाहिए। मेरा मानना है कि ये एक हकीकी मुतालबा है, हमारा आइन भी इसकी इजाज़त देता है। అమ్మలాగా వ్యవహరించి వాళ్ళకి రిజర్వేషన్లను అమలు చేయడమే కాదు, సొంత ఇల్లు కట్టుకోవడానికి ఇల్లు ఇవ్వడమే, ఇందిరమ్మ ఇల్లు ఇవ్వడమే కాదు, ఆవిడ అసైన్మెంట్ చట్టాన్ని తెచ్చి భూస్వాముల దగ్గర వేలాది లక్షలాది ఎకరాలను ప్రభుత్వం గుంజుకొని ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు అసైన్మెంట్ పట్టాలు ఇచ్చి భూ యజమానులను ఇందిరమ్మ చేసింది. అందుకే ఇవాళ ఏ ఎస్సీ, ఏ ఎస్టీ, ఏ తండా, ఏ గూడానికి వెళ్ళు వాళ్ళ ఇండ్ల ఇందిరమ్మ ఫోటో ఉంటది, మా అమ్మ ఇందిరమ్మ అని అంటారు. रिजर्वेशन लोकल बॉडीज में, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में बैकवर्ड कास्ट को मिलना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये डिमांड जेन्यून है,
ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमको इस बात की इजाज़त देता है कि हम आर्टिकल 15 और 16 के तहत जो सबसे कमज़ोर हैं, जो वीक हैं, उनसे इंसाफ करें। आर्टिकल 14 में भारत का संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, वो आर्टिकल 14 ये कहता है कि इक्वालिटी की बात जब होती है तो सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात होनी चाहिए। तो हम इस बात का डिमांड करते हैं भारत सरकार से, नरेंद्र मोदी की सरकार से, कि इस 42% को 9 शेड्यूल में शामिल किया जाए और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी बहैसियत वजीर आजम, प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि वो उनका ताल्लुक बैकवर्ड क्लासेस से है। तो हम उनसे ये डिमांड करते हैं कि वो अपनी इस मोहब्बत को दिखाएं, भारत के पार्लियामेंट में एक बिल को लाएं और 50% रिजर्वेशन के कैप को ब्रेक करें, उस सीलिंग को ब्रेक करके इस मुल्क की 80% आबादी से वो इंसाफ करें। ये हरगिज ऐसा नहीं हो सकता कि 80% आबादी सिर्फ 38% या 40% में रिजर्वेशन मिले और जिसकी आबादी 10% है उनको 20% रिजर्वेशन कैसे दिया जा सकता है। तो मैं अपनी पार्टी की जानिब से इस डिमांड का पूरा सपोर्ट करता हूं और आपको ये बात बताना जरूरी समझता हूं कि कैटेगरी बी, सी और ई में भी कई ऐसे मुसलमानों के बैकवर्ड क्लासेस भी हैं जिनको भी इससे फायदा पहुंचेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का कि आपने मुझे आने का मौका दिया, हम इसकी तारीफ करते हैं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के करीब कांचा गच्चीबौली की 400 एकड़ अराजी सरकारी होने और यूनिवर्सिटी की ना होने के दावे किए जाने के बावजूद तुलबा की जानिब से आज एक बार फिर एहतजाज किया गया। आज तुलबा के अलावा यूनिवर्सिटी के असातिज़ा ने भी एहतजाजी मार्च में हिस्सा लिया और दरख्तों की सफाई के खिलाफ नारे लगाए। टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से तुलबा से इजहार यगांगत करते हुए अम्बेडकर ऑडिटोरियम से मशरक़ी कैंपस तक रैली मुनक़्क़िद की गई। तुलबा दरख्तों की सफाई वगैरह के खिलाफ मुजाहरा कर रहे थे। पुलिस और तुलबा के माबैन धक्कम पेल भी हुई और पुलिस की जानिब से ताकत का इस्तेमाल करते हुए तुलबा को मुंतशिर करने की कोशिश की गई। मार्च शुरू होते ही तुलबा ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने ये कहते हुए नारे भी लगाए कि रेवंत रेड्डी ने पुलिस भेजी क्यों, वो खौफजदा है। जैसे ही नारेबाजी बढ़ गई, पुलिस एहलकारों ने तुलबा को ऐसा करने से रोकने की कोशिश की। तुलबा ने झुकने से इनकार कर दिया और पूछा, क्या आप हम पर लाठीचार्ज करेंगे? थोड़ी देर बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और तुलबा और असातिज़ा ने हिफाजत के लिए भागना शुरू कर दिया। पुलिस लाठीचार्ज की अपोजिशन ने सख्त मजम्मत की है। पुलिस की लाठियों से तुलबा का पीछा करने की वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तुलबा की जानिब से इस मसले पर गैर मुआयना मुद्दत की हड़ताल का भी ऐलान किया गया है। तुलबा ने कल रात भी एहतजाज किया और उन्होंने यूनिवर्सिटी के इहाते ही में चटाई बिछाकर रात गुजारी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कांचा गच्चीबौली अराजी पर दरख्तों की कटाई को आर्जी तौर पर रोकने का हुक्म दिया। ये वाटा फाउंडेशन और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तुलबा के जरिए दायर करदा मफाद आम्मा की अर्जी PIL के जवाब में आया है। अदालत ने हुकाम को हिदायत दी कि वो कल 3 अप्रैल तक ज़मीन पर काम बंद कर दे। दरख्वास्त गुजारों ने माहौलियाती और माहौलियाती खदशात का हवाला देते हुए अदालत से कांचा गच्चीबौली की ज़मीनों को कौमी पार्क करार देने की इस्तदा की है। तेलंगाना हाई कोर्ट का हुक्म है कि कल यानी 3 अप्रैल तक वहां दरख्त ना काटे जाए और ना ही कोई काम किया जाए।
यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में अराजी तनाज़े पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हुकूमत तुलबा की तशवीश को दूर करने इक़दाम कर रही है। तुलबा की जानिब से 400 एकड़ अराजी का तहफ़्फ़ुज़ करने जिद्दोजहद की जा रही है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बताया कि हुकूमत ने यह अराजी धोखेबाजों से बचाने और नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा करने हासिल करने का फ़ैसला किया है। उन्होंने यूनिवर्सिटी के मौजूदा और क़दीम तुलबा के अलावा माहिरीन माहौलियात से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि हुकूमत माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की और चट्टानों को महफूज रखने भी इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तुलबा के ख़िलाफ़ दर्ज किए गए मुक़दमात को वापस लेने की नुमाइंदगी की गई है और हुकूमत मुक़दमात वापस लेने पर गौर कर रही है। उन्होंने अराजी की मिल्कियत से मुतालिक दस्तावेज़ात भी तुलबा नुमाइंदों को दिखाया और बताया कि जनवरी 2004 के दस्तावेज़ात हैं। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరొకసారి ఎన్యూమరేషన్ చేపించుకోవడానికి ఈ లెఫ్ట్ ఓవర్ ఫ్యామిలీస్ కి ఫిబ్రవరి 16వ తారీఖు నుంచి 28వ తారీఖు వరకు ఒక అవకాశం ఇవ్వాలని చెప్పి నిర్ణయం చేసింది. ఇలా లెఫ్ట్ ఓవర్ మిగిలిపోయినటువంటి వాళ్ళు టోల్ ఫ్రీ నంబర్ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి అనౌన్స్ చేస్తా ఉన్నాం. మండల వారీగా డివిజన్ వారీగా గతంలో ఏ రకంగా అయితే ఎన్యూమరేషన్ చేశామో ఆయా మండలాల్లో ఆ మండల్ డెవలప్మెంట్ అధికారి దగ్గర ప్రజాపాలన సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన వ్యవస్థలో అక్కడ తిరిగి ఆ మిగిలిపోయినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా వస్తే వచ్చి అక్కడ అప్లికేషన్స్ ఇవ్వచ్చు. हैदराबाद यूनिवर्सिटी में तुलबा के एहतजाज और पुलिस की बर्बरियत के दरमियान मशहूर यूट्यूबर और माहिर तालीम ध्रुव राठी ने तेलंगाना हुकूमत पर तनकीद की है। ध्रुव राठी ने न सिर्फ इस मामले पर अपनी तशवीश का इजहार किया है बल्कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से भी मुदाखलत करने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर तेलंगाना हुकूमत के फैसले की मजम्मत की और यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर बुलडोज़र की तैनाती को नाकाबिल कबूल करार दिया। एक्स पर पोस्ट करते हुए ध्रुव राठी ने तेलंगाना के कारकुन और कारोबारी शख्सियत नैनी अनुराग रेड्डी की पोस्टों का एक धागा शेयर किया जिसमें बताया कि किस तरह हैदराबाद के 400 एकड़ जंगल को तरक्की की राह हमवार करने के लिए तबाह किया जा रहा है। नैनी अनुराग रेड्डी ने अपने पोस्ट में कहा कि वो ज़मीन जो 734 पौधों की अनवा 220 परिंदों की अक़साम हिरन अजगर व सदियों पुराने दरख्तों का घर है तबाही के दहाने पर है। उन्होंने ये भी पोस्ट किया कि किस तरह ज़मीन की हिफाजत के लिए एहतजाज करने वाले तुलबा को पुलिस ने मारा पीटा और जेल भेज दिया जबकि बुलडोज़र ने रात के आखिरी पहर में पुलिस की हिफाजत के दरमियान दरख्तों को उखाड़ फेंका। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के इतराफ़ अराजी का मसला अब मज़ीद तवालत इख्तियार करता दिखाई दे रहा है। जहाँ तुलबा तंजीमों की जानिब से मुसलसल इस मसले पर मुजाहरे किए जा रहे हैं, वहीं अब बीजेपी अरकान पार्लियामेंट ने अराजी का तहफ़्फ़ुज़ करने के मसले पर दिल्ली में धरना मुनज़्ज़म किया। बीजेपी अरकान पार्लियामेंट का कहना था कि सन 1970 के तेलंगाना एहतजाज में तुलबा बरादरी की जानिब से जो कुर्बानियाँ दी गई थी उसके नतीजे में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हासिल हुई थी। अब इस यूनिवर्सिटी की अराजी को बचाने के लिए जद्दोजहद की जा रही है। अरकान पार्लियामेंट ने रियासत की रेवंत रेड्डी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की और तुलबा से इजहार यगांगत भी किया। ఇప్పటికే విశ్వవిద్యాలయ భూములను కూడా ఆక్రమణకు గురవుతా ఉన్నాయి. ఉన్న విశ్వవిద్యాలయ భూముల్ని అమ్మకండి, రియల్ ఎస్టేట్ బ్రోకర్గా మారకండి, కాంక్రీట్ జంగల్గా మార్చకండి, పర్యావరణాన్ని దెబ్బతీయకండి అని చెప్పి విద్యార్థులంతా కూడా మొక్కవోని ధైర్యంతో ఉద్యమాలు చేస్తూ ఉంటే ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ పోలీసులు ఉసిగొల్పి వందల డోజర్లు అక్కడ పెట్టి పర్యావరణం అంతా కూడా ధ్వంసం చేసి చెట్లన్నీ కూడా కూల్చివేసి విద్యార్థుల రక్తాన్ని కళ్ళ చూసి ఇలా విద్యార్థుల మీద కేసులు పెట్టి జైళ్ల పాలు చేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. ఇవాళ హైదరాబాద్ విశ్వవిద్యాలయ విద్యార్థులకి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని విశ్వవిద్యాలయ విద్యార్థులు కూడా సంఘీభావం ప్రకటించడమే కాకుండా విశ్వవిద్యాలయ భూములను కాపాడమని చెప్పి ఇలా ఉద్యమాలు చేస్తూ ఉన్నారు. దానికి సంఘీభావంగా ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ పార్లమెంట్ సభ్యులుగా పెద్దలు అక్క అరుణక్క గారు,
అదేవిధంగా విశ్వేశ్వరరెడ్డి గారు, రఘునందన్ రావు గారు, నగేష్ గారు, అదేవిధంగా మా మంత్రులు ఇద్దరు, కిషన్ రెడ్డి గారు, బండి సంజయ్ గారు, అరవింద్ గారు, అనేక మందిని ఇక్కడ ఎమ్మెల్సీ అంజిరెడ్డి గారు, అదేవిధంగా మా నాయకులు ఈరోజు తెలంగాణ భవన్లో ఈరోజు ధర్నా నిర్వహించి ఈ ప్రభుత్వాన్ని నిరసన తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. మా భూముల అమ్మకం కనుక ఇట్లే కొనసాగితే ఖబర్దార్ అని చెప్పి హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం. మా జోలికి రావద్దని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. భారతీయ జనతా పార్టీ ఆ భూముల రక్షణలో మాకున్న శక్తి మేరకి విద్యార్థులకు, విశ్వవిద్యాలయాలకి అండగా ఉంటామని చెప్పి, విశ్వవిద్యాలయ భూములు కాపాడంలో భారతీయ జనతా పార్టీ పార్లమెంట్ సభ్యులుగా, భారతీయ జనతా పార్టీ శాసనసభ్యులుగా, భారతీయ జనతా పార్టీ శాసనమండలి సభ్యులుగా पार्टी यावत अंता కూడా मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला बंडी संजय ने तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की 400 एकड़ अराजी हिराज करने के फैसले पर शदीद तनकीद की। ट्विटर पर बयान जारी करते हुए उन्होंने रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो अदालत की हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रही है और माली फ़ायदे के लिए माहौल को तबाह कर रही है। उन्होंने दावा किया कि ये अराज़ी जंगलाती इलाके के दायरे में आती है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक किसी भी जंगल की अराज़ी को बग़ैर मरकज़ी हुकूमत की मंजूरी के तब्दील या फ़रोख्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने निशानदेही की कि इस अराज़ी के सिलसिले में मुकदमा हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है और अदालत ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि वो 7 अप्रैल तक वीटा फाउंडेशन नामी NGO की दरख्वास्त की जवाब में हलफनामा दाखिल करे। वज़ीर मौसूफ ने इस हिराज की शदीद मुखालिफत करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत अदालती कार्रवाइयों को नज़रअंदाज कर रही है और अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रही है। ये जानते हुए भी कि ये मामला अदालत में ज़ेर समाअत है, रियासती हुकूमत अराज़ी के हुसूल के नाम पर तौहीन अदालत कर रही है। दरख्तों को काट कर माहौल को तबाह किया जा रहा है, जबकि हुकूमत झूठा दावा कर रही है कि शजरकारी की जा रही है। कांग्रेस क़यादत पर शदीद तनकीद करते हुए बंडी संजय ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर अपने माजी के मौक़िफ़ से इनराफ़ करने का इल्ज़ाम लगाया। वज़ीर मौसूफ ने फौरी तौर पर कांचा गच्चीबौली की अराज़ी की फ़रोख्त के फ़ैसले को वापस लेने का मुतालबा किया, बसूरत दीगर इंतबाह देते हुए कहा कि अवाम हुकूमत को मुनासिब सबक सिखाएगी। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के विरसे को मिस्मार करने की कांग्रेस साजिश कर रही है। BRS की MLC के कविता ने ये इल्ज़ाम लगाया है। साथ ही साथ कांग्रेस की मुताज़िबाना पॉलिसियों पर भी शदीद तनकीद की है। कांचा गच्चीबौली अराज़ी के मामले में तुलबा के एहतजाज के दरमियान भारतीय राष्ट्रीय समिति की MLC के कविता ने तेलंगाना हुकूमत को इसके माहौल मुखालिफ रोशन पर तनकीद का निशाना बनाया। MLC कविता ने कांग्रेस पार्टी की मुताज़िबाना पॉलिसी पर शदीद तनकीद की और कहा कि कांग्रेस हमेशा अमीरों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती है और गरीबों और कमज़ोर तबक़ात को निशाना बनाती है। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश एक खुली बदउनवानी है। इस मामले में अदालत पहले ही ये फ़ैसला सादिर कर चुकी है कि ये ज़मीन क़ानूनी तौर पर यूनिवर्सिटी की मिल्कियत है। ये वही ज़मीन है जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी के दौर में दी गई थी और जिसे BRS हुकूमत ने हमेशा तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया, लेकिन अब कांग्रेस हुकूमत इस पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करने की कोशिश कर रही है। कविता ने मज़ीद कहा कि कांचा गच्चीबौली ज़मीन पर तेलंगाना हुकूमत का नख्ता नज़र उसके गरीब मुखालिफ मौक़ूफ़ को बेनकाब करता है। कविता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी BRS पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रही है और ये दावा कर रही है कि हम बाअसर अफराद जैसे माई होम रामेश्वर राव की हिमायत कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि कांग्रेस में ख़ुद इतनी हिम्मत नहीं कि वो उनके ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात और कार्रवाई करे। कविता ने वाज़े और दो टूक अंदाज में कहा कि अगर कांग्रेस के पास हिम्मत है तो वो जांच करे और रामेश्वर राव के ख़िलाफ़ बुलडोज़र कार्रवाई करे। कांग्रेस हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी को नुकसान पहुंचाकर आम शहरियों, गरीबों और कमज़ोर तबक़ात को निशाना बना रही है। अगर कांग्रेस हुकूमत वाकई बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए ज़मीन चाहती है तो वो पहले से मौजूद 397 एकड़ ज़मीन इस्तेमाल करे जो पहले ही हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए मख्तस की गई है।
लेकिन इसके बजाय कांग्रेस हुकूमत SCU के 2500 एकड़ पर मुश्तमिल कैंपस को निशाना बना रही है, जो उसके कुदरती हुस्न, माहौलियात और पुरअमन तालीमी निज़ाम के लिए एक बड़ा ख़तरा है। MLC ने कहा कि हैदराबाद में पहले ही तरक्की के लिए बहुत सारी अराजियात मौजूद है, लेकिन SCU की ज़मीन पर बुलडोज़र चलाने का मतलब यही है कि कांग्रेस हुकूमत को तालीमी इदारों की हुर्मत और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की कोई परवाह नहीं है। BRS लीडर कविता ने कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अदालत के फ़ैसले का एहतराम करे और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि BRS पार्टी हमेशा तालीमी इदारों के तहफ़्फ़ुज़, गरीबों के हुकूक़ और माहौलियात की हिफाजत के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। बुलेटिन में फ़िलहाल वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के तुलबा के ख़िलाफ़ पुलिस की बर्बरियत की भारतीय राष्ट्रीय समिति ने सख्ती से मजम्मत की है। तरक्की के नाम पर यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर 400 एकड़ में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से दरख्तों की कटाई के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ पुलिस के लाठीचार्ज पर BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने रेवंत रेड्डी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। KTR ने सब्ज़ जगहों पर तजावीज़ात करने के हुकूमत के फ़ैसले पर सवाल उठाया कि जब ज़मीन के बड़े हिस्से कहीं और दस्तयाब थे। कहा, जब फ्यूचर सिटी में 14,000 एकड़ अराजी, IT पार्क्स और इक़्तिसादी सरगर्मियाँ के लिए आसानी से जगह दस्तयाब है, तो हैदराबाद के माहौल को निशाना बनाने और आने वाली नस्लों के लिए मौजूदा शहर को तबाह क्यों किया जा रहा। फौरी तौर पर अपने जारिहाना तेवर को तर्क करने और फौरी तौर पर कांचा गच्ची बोली की अराजी के हुसूल के फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया। BRS के रुकन राज्यसभा के सुरेश रेड्डी ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी अराजी तनाज़े को राज्यसभा में उठाया। उन्होंने यूनिवर्सिटी की 400 एकड़ पर बेदरपे दरख्तों की कटाई पर सख्त एतराज़ करते हुए कहा कि इससे माहौलियात को शदीद नुकसान पहुँचेगा। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से फौरी मुदाखलत और रियासती हुकूमत को दरख्तों की कटाई को रोकने के अहकामात जारी करने का मुतालबा किया। कि सुरेश रेड्डी ने हरियाली के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर देते हुए मज़ीद नुकसान को रोकने के लिए फौरी कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर दिया। Sri K.R. Suresh Reddy, concern over the destruction of forest at Hyderabad University. Deputy Chairman, sir, I would like to raise an important issue concerning the University of Hyderabad. The land crisis threatens education, environment and justice, sir. The Telangana state government has initiated the process of selling 400 acres of government University of Hyderabad's land at Kanchagachipoli for commercial purposes, sir. This decision directly contradicts the university's founding principles. The University of Hyderabad was established in 1974 through the 32nd Constitutional Amendment under Article 371D(e) to promote education and research for the Telangana region, which historically faced educational neglect. The move to sell this land is not just a breach of public trust, but a threat to students' future and a serious environmental hazard. Our party and our party working president, KT Ramarao, has vowed support to this agitating university students, sir. The students expressed anguish over this betrayal, highlighting how it jeopardizes the university's future expansion and compromises higher education access for marginalized communities. Environmental catastrophe in making, sir. This land in question is a critical natural sanctuary in Hyderabad's shrinking urban ecosystem. It is home to 237 species of birds and
endangered wildlife, sir, including the Indian star tortoise, spotted deer, Indian rock python, monitor lizards, and so on. तेलंगाना की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने राशन की दुकानों पर बारीक चावल की तकसीम का जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स और सिविल सप्लाईज के अफसरान के साथ टेली कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो हुकूमत के ऐलान के मुताबिक स्कीम पर अमलावरी को यकीनी बनाएं। वाज़ेह हो कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हुजूराबाद में बारीक चावल की तकसीम स्कीम का आगाज़ युगादी पर किया था। चीफ सेक्रेटरी ने कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो वुज़रा और मुकामी MLAs के साथ मुशावरत करके एक एक्शन प्लान तैयार करे और मिडिल हेडक्वार्टर पर तकसीम प्रोग्राम मुनाकिद करें। उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि इन प्रोग्रामों में मुकामी नुमाइंदों और आवाम को एक बेहतर का माहौल बनाने के लिए शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने स्कीम की वसी पैमाने पर तशहीर की ज़रूरत पर भी जोर दिया और यकीन दिलाया कि चावल का 50% से ज़्यादा स्टॉक पहले ही मुनासिब कीमत की दुकानों पर पहुंचा दिया गया है, बाकी स्टॉक आने वाले दिनों में भेज दिया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी ने ज़िलाई अहदेदारों को राशन की दुकानों पर अमल की बाकायदगी से निगरानी करने की भी हिदायत दी। भारतीय राष्ट्र समिति BRS की जानिब से अपनी सिल्वर जुबली का जश्न बड़े पैमाने पर मुनाकिद करने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। BRS की सिल्वर जुबली के मौके पर 27 अप्रैल को वरंगल में एक बड़ा जलसा मुनाकिद किया जा रहा है। पार्टी इस जलसे के ज़रिए अपने कारकुनों और केडर में नया जोश व खरोश पैदा करना चाहती है। असेंबली और लोकसभा इंतखाबात में पार्टी के नाक़िस कारकर्दगी के बाद कारकुनों के हौसले पस्त है। BRS के वरंगल से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर कायदीन ने पार्टी सरबराह व साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और जलसे की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया। जलसे में सारे तेलंगाना से पार्टी केडर और कारकुनों की शमूलियत को यकीनी बनाने की मंसूबाबंद की जा रही है। KCR ने वरंगल के कायदीन को कई हिदायत दी और कहा कि जलसे के शुरका को तमाम सहूलियात फराहम की जाए और किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। जलसे को बेहतर सूरत कामयाबी से हमकिनार किया जाना चाहिए। तमाम कायदीन को मुश्तरका जिद्दोजहद से इसे कामयाब बनाना चाहिए। फ़ोन टैपिंग मामले में खुसूसी तहक़ीक़ाती टीम ने अपनी कार्रवाइयों में तेज़ी पैदा कर दी है। सहाफ़ी A. श्रवण आज भी पूछताछ के लिए अहदेदारों के रूबरू पेश हुए। श्रवण राव एक मीडिया इदारे के मैनेजिंग डायरेक्टर है और वो 1 साल से पूछताछ से बच रहे थे। 29 मार्च को भी SIT अहदेदारों ने उनसे जुबली हिल्स ACB ऑफिस में पूछताछ की थी। ज़राए ने ताहम बताया कि A. श्रवण पूछताछ में तो हाजिर हुए, लेकिन वो तहक़ीक़ाती अहदेदारों से ठीक तरह से ताउन नहीं कर रहे हैं। वो कई सवालात पर लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं और जवाबात देने से गुरेज कर रहे हैं। SIT की जानिब से इस केस की गई पहलुओं से तहक़ीक़ात की जा रही है। इस केस में ऐसी पहलुओं का भी बारीकी बीना से जायज़ा लिया जा रहा है। ये केस BRS दौरे हुकूमत में फ़ोन टैपिंग किए जाने से मुताल्लिक़ है। माह मार्च में तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल इंतज़ामिया की जानिब से नकली दवाओं और डॉक्टर्स के खिलाफ जुमला 65 धावे किए गए। इन धावों के दौरान जुमला 3 लाख रुपए से ज़ायद की अद्वियात को जब्त किया गया। कुछ नकली अद्वियात को जब्त किया गया। कुछ ऐसी अद्वियात भी जब्त कर ली गई जिनकी मुद्दत ख़त्म होने के बाद भी उन्हें फ़रोख्त किया जा रहा था। हैदराबाद, सिकंदराबाद, मुलुक और जगतियाल में ये धावे किए गए। कुछ मेडिकल शॉप्स पर भी धावे हुए जहां इस तरह की अद्वियात को फ़रोख्त किया जा रहा था। कुछ दरमियानी आदमियों को भी जो फ़र्ज़ी इश्तिहारात के ज़रिए अद्वियात फ़रोख्त कर रहे थे, उन्हें भी हिरासत में लिया गया। कुछ अद्वियात ऐसी भी थी जिन्हें डॉक्टर्स की तशख़ीस के बग़ैर फ़रोख्त नहीं किया जाना चाहिए था। अद्वियात की ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी गैर मुनासिब ढंग से की गई थी। क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माने भी आयद किए गए। आवाम से अपील की गई है कि वो इस तरह के मामलात में चौकस रहे और गैर क़ानूनी तौर पर अद्वियात की फ़रोख्त के ख़िलाफ़ ड्रग्स कंट्रोल हुकाम को शिकायत दर्ज करवाएं। प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली को ज़्यादा मौसर बनाने की कोशिश के साथ इंडियन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी पेटीएम ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC के साथ पूरे शहर में डिजिटल अदायगी की सहूलत को शुरू करने के लिए हाथ मिलाया है।
پہل کے تحت پے ٹی ایم نے 400 سے زیادہ آل ان ون ETC ڈیوائسز یا کارڈ مشینیں مختلف ٹیکس وصولی مراکز پر اور گھر گھر ٹیکس وصولی کے لیے نصب کی ہے۔ یہ آلات رہائشیوں کو کریڈٹ کارڈز، ڈیبٹ کارڈز اور QR کوڈ کے ذریعے پراپرٹی ٹیکس ادا کرنے کے قابل بناتے ہیں، جو بقایا واجبات کی جانچ پڑتال، حقیقی وقت میں ادائیگی کرنے اور تصدیقی سلپس فراہم کرنے کے لیے GHMC ایپ کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے مربوط ہے۔ اس پہل کے ساتھ GHMC نقد چیک اور ڈیمانڈ ڈرافٹ ڈیلیٹنگ کو ختم کرنے کی امید رکھتا ہے، جس سے ادائیگی کا عمل تیز تر، زیادہ محفوظ اور آسان ہوگا۔ اس سال GHMC نے پراپرٹی ٹیکس میں 31 مارچ کی شام تک 2012 کروڑ روپے سے زائد جمع کر کے ایک تاریخی سنگ میل حاصل کیا۔ یہ شہری ادارے کی تاریخ میں اب تک کا سب سے زیادہ مجموعہ ہے۔ ضلع عادل آباد کے بلا منڈل کے دیہی گاؤں میں باریک چاول کی تقسیم کی تقریب آج تحصیلدار رگھوناتھ راؤت نے منڈل کانگریس کے اہم رہنماؤں کے ساتھ مل کر آغاز کیا۔ اس موقع پر منڈل کانگریس کے صدر فیض اللہ خان نے کہا کہ ریاست میں غریبوں کی غذائی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے حکومت نے بڑی کوششیں کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سفید راشن کارڈ رکھنے والے خاندانوں کو آج کانگریس پارٹی کے اہم رہنماؤں کے ساتھ مل کر باریک چاول کی تقسیم کا آغاز کیا گیا ہے۔ انہوں نے سفید راشن کارڈ رکھنے والے ہر خاندان کو 6 کلو باریک چاول دیا جائے گا۔ فیض اللہ خان نے کچھ BJP رہنماؤں کی جانب سے کیے جا رہے غلط پروپیگنڈے کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ BJP کے زیر اقتدار ریاستوں میں باریک چاول کیوں نہیں دیا جا رہا۔ దహేగావ్ గ్రామంలో ఏదైతే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీ మేరకు ఈ ఉగాది పండుగ నుండి ప్రతి పేదవాడి ఆకలి తీర్చాలనే ఉద్దేశంతో మా డైనమిక్ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు సన్నబియ్య పంపిణీ కార్యక్రమం ప్రారంభించడం జరిగింది। మరి ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాం, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి దాదాపు ఒక 16-17 నెలలు కావస్తోంది। ఈ 16-17 నెలలలో ప్రజలకు అనుగుణంగా ప్రజల అభిష్టం మేరకు పరిపాలన అనేది సాగుతూ ఉంది। మరి ఈ ఏదైతే ఎన్నికలు ఇచ్చిన హామీ మేరకు ఈ హామీ సన్న బియ్యం యొక్క హామీ ఈరోజు నెరవేర్చడం జరిగింది। మరి ఈరోజు బీజేపీ వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటే మరి ఇది మా కేంద్రం ఇచ్చింది, 40 రూపాయలు కేంద్రం ఇస్తున్నది, రాష్ట్ర మాట ఎంత అనేది వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు। నేను ఒకటే వారికి ప్రశ్నిస్తున్నా, సరే ఏదైనా కేంద్రమైనా రాష్ట్రమైన ఒక సహకారంతో కేంద్రం యొక్క తెలంగాణ భారతదేశంలో ఉంది కాబట్టి తెలంగాణకు వాటా ఇచ్చేది కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం కాబట్టి దాని యొక్క బాధ్యత కాబట్టి ఇస్తున్నది। నేను ఒకటి ప్రశ్నిస్తున్నా, మరి బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి, మహారాష్ట్ర ఉంది, మధ్యప్రదేశ్ ఉంది, యూపీ ఉంది, మరి అక్కడ ఎందుకు సన్న బియ్యం పంపిణీ కార్యక్రమం చేపట్టలేదు? మరి ఇక్కడ తెలంగాణలో మాత్రం మేము ఇచ్చిన హామీ। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। सख्त मुखालिफत व शदीद एहतजाजों के बावजूद भी मोदी सरकार ने लोकसभा में पेश कर दिया वक्फ तरमीमी बिल। अपोजिशन का शदीद हंगामा, बिल पर बहस के लिए 8 घंटों का वक्त मुतय्यर। BC एसोसिएशन का दहली जंतर मंतर पर बड़ा एहतजाजी मुजाहरा, CM रेवंत रेड्डी व असदुद्दीन ओवैसी की भी शिरकत। रिजर्वेशन को बढ़ाने बिल की हिमायत का मरकज पर जोर। हैदराबाद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का एहतजाज और पुलिस का लाठीचार्ज। यूट्यूबर ध्रुव राठी की तेलंगाना हुकूमत पर तनकीद, राहुल गांधी से की मुदाखलत की अपील। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद तुलबा के खिलाफ मुकदमात वापस लेने पर हुकूमत का गौर। डिप्टी CM का बयान, कहा धोखेबाजों से बचाने अराजी हासिल करना मकसद। माह मार्च में तेलंगाना भर में ड्रग्स कंट्रोल हुकाम के धावे। 3 लाख रुपए से जायद की गैर कानूनी अद्वियात को किया गया जब्त। खबरनामे में फिलहाल बस अभी इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।